ایمان ستی نئی دین دنیا نئی چندر حالات و واقعات کا پروگرام شیربین لے کر میں محمد حسین ظفر آپ کی خدمت میں حاضر. آج کے خاص موضوعات ہیں وندے بھارت ٹرین جنوب سے راست چلائے جانے کے سلسلے میں تیاریاں تیز. محکمہ فوڈ سیفٹی کی طرف سے خاص معاملات پر تیار کی جا رہی پنیر پر کوئی پابندی نہیں. گورنمنٹ میڈیکل کالج ہندوارہ میں بنیادی سہولیات میں کمی, زیر تعلیم طلبہ نے کیا احتجاج. بڑگام اور نگروٹا میں ضمنی چناؤ, سخت مقابلے کی امید. اور موسم سرما کی آمد کے ساتھ ہی آگ لگنے کے حادثات میں اضافہ. اور موضوعات پر بھی آج کی شیربین میں بات ہوگی. ایک مختصر پروگرام اس تہندس خدمت مز پیش کران فاروق احمد پیر شیخ بشیر. پروگرام پروڈیوسر وسیم فاروق وانی تو معاون عاشق حسین. اسمبلی نشستوں پر ووٹنگ عمل میں لائی گئی جبکہ دوسرے یہ آکاشوانی ہند سری نگر اسٹیشن جموں کشمیر میڈیم تو FM بڑگام اسمبلی حلقے میں 11 نومبر کو ضمنی چناؤ ہوگا اور اس بار بڑگام نشست دلچسپی کا مرکز بن چکی ہے. پارٹی لیڈر اور ممبر پارلیمنٹ آغار اللہ مہدی, جو کہ پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ گہرے اختلافات رکھتے ہیں, نے پہلے ہی آکاشوانی سری نگر کی آواز سامعین شام کے 7 بج رہے ہیں. امید ہے بڑگام حلقے میں نذیر احمد خان, محی الدین منتظر, آغا سید محمود اور آغا سید منتظر کے ساتھ ساتھ آغا سید محسن کے درمیان سخت مقابلے کی امید ہے. شام کے 7 بجے. پروگرام شیربین کا اسمبلی حلقوں بڑگام اور نگروٹا میں ضمنی انتخابات کے پیش نظر سیاسی سرگرمیاں اپنے عروج پر ہے. وہی بڑگام حلقہ میں سیاسی سرگرمیاں زور و شور سے جاری ہے, جس میں 1,20,000 سے زائد رائے دہندگان مقررہ پولنگ دن کو اپنے حق رائے دہی کا استعمال کریں گے. وہی آج ڈسٹرکٹ الیکشن افسر بڑگام ڈاکٹر بلال محی الدین بٹ نے انتخابات کے ووٹوں سے پہلے عملے کی رینڈمائزیشن کی ہے. اگرچہ ضمنی انتخابات کے ووٹوں کے لیے صرف کچھ ہی دن باقی رہ گئے اور مختلف سیاسی پارٹیوں کے رہنما اور نامزد امیدوار جگہ جگہ پر چناؤ ریلیوں اور روڈ شوز کا انعقاد کر رہے ہیں, اور وہ اپنا انتخابی منشور لوگوں کے سامنے رکھ کر انہیں راغب کرنے میں مصروف دکھائی دے رہے ہیں. حلقے کے سبھی علاقوں میں سیاسی جماعتیں خصوصاً ایم پی, PDP, BJP, AIP, عام آدمی پارٹی اور اپنی پارٹی کی جانب سے ووٹوں کو لگانے کی غرض سے تقریباً ہر روز پروگرامز کا انعقاد کیا جا رہا ہے. مذکورہ خدمت میں سیاسی جماعتوں و لیڈران کی طرف سے جن میں آغا سید محمود, آغا سید منتظر مہدی, آغا سید محسن, نذیر احمد خان, جبران ڈار, منتظر محی الدین, ہیبا خان, اجیتیا شرما, مختار احمد ڈار و دیگر آزاد امیدوار ووٹران کو اپنی جانب لبانے کی غرض سے تقریباً ہر روز مختلف علاقوں میں جلسے جلوس, روڈ شوز اور اجتماعات کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے. اور دن گزرنے کے ساتھ ساتھ حلقے کی سبھی گاؤں جات میں سیاسی سرگرمیاں زور پکڑتی جا رہی ہے. ظاہر ہے چناوی ماحول میں کھڑے امیدواروں کے حق میں کئی بڑے رجحان, جن میں PDP کی ارتجا مفتی امیر وحید الرحمان فرا, فیاض احمد میر اور غلام نبی نور حاجرہ, نیشنل کانفرنس کے متعدد MLA جن میں ہلال اکبر لون, شفیع احمد وانی, علی محمد ڈار, تنویر صادق, ناوید حسن بیگ, احسان پردوسی اور سیف الدین بٹ, BJP کے رویندر رینا, اشوک کول, سنیل شرما, علی محمد میر, عوامی اتحاد پارٹی کے ابرار رشید و دیگر لیڈران اجتماعات اور روڈ شوز کے دوران لوگوں سے اپنے امیدواروں کے حق میں ووٹ مانگنے کی اپیل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. قابل ذکر بات ہے کہ گزشتہ سال کے اسمبلی اور پارلیمنٹ انتخابات کے برعکس حلقے میں کسی بھی پارٹی نے کوئی بھی بڑا جلسہ منعقد نہیں کیا. البتہ زیادہ تر لیڈران گاؤں اور گھر گھر جا کر ووٹران کو اپنی اور مائل کرنے کی جیت اور کوشش میں لگے ہوئے ہیں. اسی دوران آج نیشنل کانفرنس کے آغا سید محمود نے جاوید ڈار اور سیف اللہ میر کے ہمراہ ہتارن, فیبک, حوج باغ اور ہرن, BJP کے آغا محسن رویندر رینا کے ہمراہ فیبک, آرک, ناربل اور سزیب, PDP کے آغا سید منتظر نے علاقہ دلوان پورا, گوگو, ڈانگر پورا اور راجون, AIP کے نذیر احمد خان نے علاقہ ناربل, سزیب, جاری گڈ, عام آدمی پارٹی کی دیبا خان نے علاقہ شولی پورا, پیرزادہ محمد شفیق شاہ نے ناربل, جبکہ آزاد امیدوار جبران ڈار نے پڑگام, محمد نارکرا منتظر محدین نے راجون اور آزاد امیدوار سمیر احمد شاہ نے نصر اللہ پورا, پائمت, بھارت اور چوا میں عوامی اجتماع سے خطاب کیا اور گھر گھر جا کر لوگوں سے اپنے حق میں ووٹ مانگنے کی اپیل کرتے ہوئے نظر آئے. بڑگام حلقے میں ووٹران کی کل تعداد 1,26,025 ہے, جن میں 63,803 مرد اور 62,222 خواتین شامل ہیں, جبکہ حلقے
J&K Government of Registered, affiliated with J&K Nursing Council and State Allied Health Care Council J&K से खासकर J&K के बड़े अस्पतालों से छूट आया। FMPHW, MMPHW, GNM, OTT, anesthesia assistant, DMLT, the dental assistant course admission جاری. The next paramedical and nursing college Pulwama, cell number 9419003751. شربین اب آکاشوانی سری نگر سے میڈیم ویو 268.8 FM2 147.5 میگا ہرٹز کے علاوہ آکاشوانی کپواڑہ اور بھدروا کے ساتھ ساتھ آکاشوانی کے موبائل عمل میں لائی گئی ہے۔ سامعین، بڑگام اور نگروٹا اسمبلی حلقے کے لیے ضمنی چناؤ 11 نومبر کو ہو رہا ہے اور اس وقت دونوں حلقوں میں انتخابی مہم زور و شور سے جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ نے گزشتہ روز نگروٹا میں پارٹی امیدوار کے حق میں ایک بڑی جلسے سے خطاب کیا، جبکہ آج بڑگام میں انہوں نے ایک کروڑ شمولیت کی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے بنا نام لیے ممبر پارلیمنٹ آغا سید اللہ مہدی پر بھی تنقیدی جملے کسے، جبکہ انہوں نے PDP اور BJP کے درمیان سیاسی ساز باز کا بھی الزام لگایا۔ صحیح بڑگام میں ایک روڈ شو کے دوران وحید اللہ نے کہا کہ اپوزیشن بجلی پر سیاست کرنے پر مائل، جبکہ ہم نے اپنے منشور میں جموں کشمیر کے لوگوں کو 200 یونٹ مالیاتی دینے کا وعدہ کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آج تمام طاقتیں نیشنل کانفرنس اور بڑگام حلقے کے نامزد امیدوار آغا سید محمود کو شکست دینے کے لیے نکل پڑی ہیں۔ ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم اس بنیاد پر سچے رہے جس پر ہم نے ایک سال پہلے ووٹ مانگے تھے۔ 2014 کے انتخاب میں PDP نے BJP کو اقتدار سے لٹکنے کے لیے ووٹ مانگے تھے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بڑگام کے لوگوں کو گاندربل کی طرح یونیورسٹی دے کر ان کا شکریہ ادا کریں گے۔ بعد میں کیا ہوا سو اسی کو بتا دیں، جبکہ اب ریل کے ذریعے جا کے جب ہماری کامیابی ہوگی تو جن لوگوں نے اس کامیابی میں ہمارا ساتھ نہیں دیا وہ پھر ہماری خوشی میں بھی شامل نہیں ہو سکے، لیکن ان کے پاس اور کچھ یہاں لوگوں کو بیچنے کے لیے ہے نہیں۔ انہوں نے دھوکے اور جھوٹ کے علاوہ یہاں لوگوں کو کچھ نہیں دیا۔ انشاءاللہ دونوں سیٹوں پہ ہمیں لگتا ہے کہ ماحول ہمارے حق میں۔ اب آخری 2-3 دن رہ گئے ہیں، تھوڑی سی اور محنت کرنی ہوگی تاکہ جہاں تک ہم فی الحال نہیں پہنچے ہیں ان ووٹوں تک بھی ہم پہنچے اور انہیں نیشنل کانفرنس کے حق میں جو ہے ووٹ ڈالنے کے لیے ہم تیار کریں۔ ہم نے کبھی کیمپین کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا، جو اپنی مرضی سے آ کے کیمپین کرنا چاہتا ہے وہ کرتے ہیں، جو نہیں کرنا چاہتے وہ نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے نا، میں نے کبھی کسی کو کیمپین کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا، لیکن آگے جا کے جب ہماری کامیابی ہوگی تو جن لوگوں نے اس کامیابی میں ہمارا ساتھ نہیں دیا وہ پھر ہماری خوشی میں بھی شامل نہیں ہو سکے۔ ایک دن میں سارا آپ کے سامنے رکھوں گا، دن سے میں نے اپنے ساتھیوں سے اور بالخصوص اس وقت بڑگام کے ساتھی سے یہ کہا تھا کہ مجھے 2 سیٹوں سے لڑنا نہیں ہے، لیکن آج موضوع وقت نہیں ہے کہ میں تمام حقیقت جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں۔ ایک دن آئے گا ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں۔ میٹر لگانا نہ لگانا وہ لوگ اپنا فیصلہ کریں۔ میں لگاتار کہتا رہا ہم نے لوگوں کے ساتھ ایک بہت بڑا وعدہ کیا ہے کہ جو لوگ 200 یونٹ سے کم بجلی استعمال کریں گے ان کی بجلی مفت ہوگی بنا میٹر لگائے۔ اس وعدے کو ہم پورا نہیں کر پائیں گے۔ آپ اگر اس بہت بڑے فیصلے میں شامل نہیں ہونا چاہتے مطلب ہے یہ میٹر، لیکن کل کو جب 200 یونٹ مفت بجلی ہم فراہم کرنا شروع کریں گے اور آپ کے گھر میں میٹر نہیں ہوگا اور آپ کو اس چیز کا فائدہ نہیں ملے گا تو اس کے لیے پھر آپ ان لوگوں کو قصوروار ٹھہرائیے جو ان میٹروں پہ سیاست کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اور کچھ یہاں لوگوں کو بیچنے کے لیے ہے نہیں۔ انہوں نے دھوکے اور جھوٹ کے علاوہ یہاں لوگوں کو کچھ نہیں دیا۔ ہم لوگوں کو راحت پہنچانا چاہتے ہیں، راحت پہنچانے کا یہ ایک ذریعہ ہے۔ اب لوگ اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا نہیں یہ لوگوں تک یہ فیصلہ کابینہ کے ذریعے نہیں ہوا، نہ ایجوکیشن منسٹر صاحبہ کا کہیں پہ اس فیصلے پہ دستخط۔ ہمارے کام میں دخل نہیں دیا جانا چاہیے، یہ ہم فیصلہ کریں گے کہ اسکول میں کیا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، باہر کہیں سے ان معاملوں میں ایجوکیشن نہیں آنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ نے بڑگام صحبوگ میں اپوزیشن جماعتوں پر کی لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے وندے ماترم کے 150 سال مکمل ہونے کے سلسلے میں ایک تقریب میں شرکت کی جو محکمہ ثقافت کی جانب سے منعقد کی گئی تھی۔ لیفٹنٹ گورنر نے بنکم چندر چٹرجی کو خراج عقیدت پیش کیا اور وندے ماترم پر ایک نمائش کا بھی جائزہ لیا۔ اس موقع پر ممبر پارلیمنٹ جگل کشور شرما، راجیہ سبھا ممبر غلام علی کھٹانا، چیف سیکرٹری اتل ڈولو، پرنسپل سیکرٹری ہوم چندر کیر بھارتی اور دیگر اعلیٰ افسران موجود تھے۔ ادھر ضلع اننت ناگ میں بھی قومی
नगमा वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मल होने पर एक तकरीब का एहतमाम किया गया। ये तकरीब टाउन हॉल अनंतनाग में मुनक्किद हुई, जिसमें जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग सईद फखरुद्दीन हमीद के अलावा सीनियर सिविल पुलिस अफसरान मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर की दीगर अजला से भी इसी तरह की तकरीबात मुनक्किद होने की खबर है। अब एक समाजवादी कश्मीर में हर साल मौसम सरमा शुरू होने के साथ ही आग लगने के वाकयात में नुमाया तौर इजाफा देखने को मिलता है, जिस दौरान बड़े पैमाने पर जानो माल का नुकसान आग लगने के वाकयात में आमतौर इंसानी गफलत की बुनियादी वजह गर्दानी जाती है। और यही वजह है कि महकमा फायर सर्विस की तरफ से हर साल बेदारी मुहिम चलाई जाती है ताकि लोगों को आग लगने के मुमकिन वजूहात और एहतियाती तदाबीर के बारे में जानकारी दी जा सके। इधर अवामी सतह पर ये बातें भी सामने आ रही हैं कि हमारे यहाँ वक्त के तकाजों के मुताबिक आग से लड़ने के लिए कश्मीर साजो सामान दस्तियाब नहीं है, जबकि एक दो नहीं बल्कि दर्जनों मकामात पर आगे भी फायर स्टेशन कायम नहीं हो सके हैं, जिससे बहुत जरूरत दूर दराज इलाकों से आग बुझाने वाली गाड़ियां मंगानी पड़ती हैं। और इस वजह से बाद सोशल मीडिया पर भी बड़े पैमाने पर नुकसान का सामना रहता है। सबसे होने के बाद लोगों के दिलों में इस कदर खौफ बढ़ गया कि बाद लोगों ने गोश्त मुर्ग खाना ही वक्ती तौर पर तर्क कर दिया और यूं हजारों लोगों, खासतौर ऐसे लोग जो कानून और ज़वाबित के तहत अपना काम कर रहे थे, को बेरोजगारी का सामना करना पड़ा। इधर ये मामला सामने आने के बाद से सरकार की तरफ से खाने पीने की अशिया फरोख्त करने से मुताल्लिक कानून और ज़वाबित का भी अलसरेनो जायजा लिया गया और बाज़ नई गाइडलाइंस भी जारी की गई। इस दौरान महकमा फूड सेफ्टी की तरफ से भी मामले की निस्बत से कार्रवाई में सुरत लाई गई और बाजारों पर कड़ी निगाह रखी जाने लगी। खासतौर से गोश्त, मुर्ग, मछली और पनीर जो बाहर से वादी लाए जा रहे हैं पर खासी नजर रखी जा रही है। इधर हाल ही में पनीर से मुतालिक भी बाज़ खबरें सोशल मीडिया पर गश्त करने लगी, जिसके बाद महकमा फूड सेफ्टी को इस हवाले से वजाहत करना पड़ी है। महकमे के मोमिन डायरेक्टर हिलाल अहमद मीर के मुताबिक बाज़ लोग महकमे की कार्रवाई को गलत तरीके पर पेश करके लोगों में कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं और इस वजह से भी ईमानदारी से काम करने वाले लोगों के कारोबार पर बुरा असर पड़ रहा है। जो पनीर बाहर से नेबरिंग स्टेट है वहाँ से वाक़ात में भी इजाफा दर्ज किया जा रहा है। पिछले साल श्रीनगर जिले में सबसे पहले उसको ये टेम्परेचर कंट्रोल वारदातें रूनुमा हुई, जिनमें 284 के करीब ढांचे भी शामिल हैं। ऐसे ही अक्टूबर के महीने के आखिर तक श्रीनगर में आग के साथ साथ जो बर्तन वारदातें कंटेनर यूज करते थे, अलबत्ता कुछ बात यह है कि इनमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सबसे बड़ी आग लगने की बुनियादी वजह बिजली शॉर्ट सर्किट और रात के दौरान बॉयलर ये पाया कि उसके गर्मी के हालात के सबब जो आग लग जाती है। उधर वादी के दूसरे अजला से भी आग लगने के वाक़ात रोजाना दर्ज किए जाते हैं, जिसकी वजह से हम मालिक को इस किस्म की जो पनीर थी उसको हम जमा बैन। इसमें ये भी फिर यहाँ हमारे पास भी कुछ जो फोर्सेज वो रात के दौरान गर्मी के हालात लगाने के दौरान एहतियात से आपने आग लगने के बड़े हुए बैन जो यहाँ पर आपने सईद यासिर की रिपोर्ट सुनी। सामीन, गुलमर्ग प्रेस क्लब ने सीनियर सहाफ़ी, ब्रॉडकास्टर और KTV न्यूज उर्दू के साबिक एडिटर इन चीफ शाहिद मसूद बुखारी की चौथी बरसी पर उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया है। इस मौके पर गुलमर्ग प्रेस क्लब के चेयरमैन BA सागर और जनरल सेक्रेटरी आदिल डार की तरफ से तकरीब मुनक्किद की गई और मरहूम शाहिद बुखारी को याद किया गया और उनके हक में दुआएं मग़फ़िरत की गई। वाज़ेह है कि शाहिद बुखारी ने अपनी सादी जिंदगी इंतहाई हिम्मत, मेहनत और ईमानदारी से गुजारी और एक मुनफरिद मकाम हासिल किया। अनंतनाग से इस तारीख की खबर है कि ICMR के वन हेल्थ प्रोग्राम के तहत एक बेदारी रैली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में मुनक्किद की गई। ये रैली आज सुबह 10 बजे एसोसिएटेड अस्पताल जंगलात मंडी से रवाना हुई, जिसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग के प्रिंसिपल और डीन प्रोफेसर डॉक्टर रुखसाना नजीब ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अब एक और मौजूद, सामीन कश्मीर में सर्दियों की शिद्दत में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है और गुज़श्ता रात इस मौसम की सर्दतरीन रात दर्ज हुई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक श्रीनगर में कम से कम दर्जा हरारत 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा, जो इस सीजन का सबसे कम दर्जा हरारत है। मशहूर सेहत मकाम पहलगाम, गुलमर्ग और कुपवाड़ा में भी दर्जा हरारत मनफी सतह तक पहुंच चुका है। महकमा मौसमियात के तर्जुमान के मुताबिक साफ मौसम के बायस रात के दर्जा हरारत में नुमाया
कमी आई है और आइंदा चंद रोज में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे की उम्मीद है। शेरबीन अब श्रीनगर से सुन रहे हैं। सामीन, आज मुल्क में सरतान यानी कैंसर से मुतल्लिक दिन मनाया गया। इस हवाले से मुल्क भर में तकरीबात मुनक्कद हुई, जहां मुकर्रिरीन ने मौजू के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया। सामीन को बताते चले कि सरतान एक बीमारी है जिसमें जिस्म के खलिए बेकाबू होकर बढ़ते हैं और मुख्तलिफ आज़ा पर असरअंदाज होते हैं। दुनिया भर में एक आदाद शुमार के मुताबिक सालाना 1 करोड़ लोग इस बीमारी की वजह से लुत्फ़ आज़ा बन जाते हैं, जिनमें 20 लाख भारतीय भी होते हैं। हमारे यहाँ निवादी कश्मीर में भी गुज़श्ता एक दहाई के दौरान सरतान के मरीजों की तादाद में काबिल फ़िक्र हद तक इजाफा देखने को मिला है और सरतान की बीमारी के फैलने के पीछे कई चीजें कार फरमा है। एक मुकम्मल रिपोर्ट अकरम हसन की ज़बानी। तो उसमें डिमांड बढ़ गई, हर साल 7 नवंबर को मनाया जाता है। उसकी वजह से जो लोकल जो आवाम में कैंसर के बारे में जानकारी पैदा करना और इस बीमारी से बचाव जरूर तशख़ीस और इलाज की अहमियत को उजागर करना है। लोगों को कैंसर की इब्तिदाई अलामत और वजूहात के बारे में मालूमात देना ताकि बर वक्त तशख़ीस मुमकिन हो सके। इस मौके पर माहिरीन मर्द कैंसर से मुतल्लिक जानकारी उनको वुसअत देने और आम लोगों को इस मर्द के बर वक्त इलाज की जरूरत पर जोर दिया। उनका कहना था कि अगर किसी इंसान को लाभ इस मर्ज की सही वक्त पर तशख़ीस हो और इसका बर वक्त इलाज मुआवजा किया जाए और वो खुद मतलूबा एहतियाती इक़दाम करे और अगर हमें 15 दिन के बाद लगेगा, हालांकि मैं आपको बताऊं कि पिछले 4-5 दिनों से हमें तकरीबन 5 जो बुजुर्ग हैं उनके कारोबार को हमने बंद किया। जिंदगी में बेहतरी किसी भी किस्म के कैंसर का इम्कान और खतरा कम किया जा और 15 दिन के बाद हम देखेंगे जहाँ भी हमें लगेगा ये बात या तो हम उनकी लाइसेंस जो है या रजिस्ट्रेशन ऐसे जो फूड बिजनेस ऑपरेटर होंगे उनके खिलाफ हम जो कानून का ये थे लखनऊ सिटी के मुआविन डायरेक्टर बिलाल अहमद भी। शहरबीन का ये हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे खैबर सीमेंट। मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों बढ़ाऊं, तो रोका किसने? रोका तो किसी ने नहीं, समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे तुमसे। तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। और उससे मेरा क्या फायदा? देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 9015807433। शेरबीन में आपका समीन आल जम्मू कश्मीर डेलीवेजर्स संघर्ष समिति के तहत जम्मू कश्मीर सरकार में तैनात आजी मुलाजमीन ने आज शहीदी चौक जुम्मू में जमा होकर अपने मुतालबात को लेकर एहतजाज किया। एहतजाजियों ने वज़ीर आला की रिहाई की तरफ जाने की कोशिश की, तब उनकी इस कोशिश को नाकाम बना दिया गया। इस मौके पर समिति के सदस्य सुनीकांत चिग ने मीडिया को बताया कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है और उन्हें हुकूक से महरूम रखा जा रहा है। मसूद ने मजीद कहा कि उन्हें वज़ीर आला से मिलने नहीं दिया गया, लेकिन इससे उनके हौसलों में कोई कमी नहीं आएगी और वो अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। समीन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हलवारा ने अगर काम करना शुरू कर दिया है जारी, लेकिन यहाँ ज़ेर तालीम मेडिकल तलबा की शिकायत है कि उन्हें क़यामत पहुँचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे खैबर सीमेंट। मजबूत और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से की जा सके। सर पहले तो हम 1.5 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, बहुत दूर से आ रहे हैं, दिल्ली जम्मू बहुत दूर से आ रहे हैं सब लोग। हम 5 लोग एक कमरे में रहते हैं, 5-5, 6-6 लोग। ना वहाँ पे पानी होता है, 2-2 दिन लाइट नहीं आती है। अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क
वाक्य कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 9018074333 बट लाइट की जरूरत होती है सबको, पानी की जरूरत होती है सबको। ये नहीं है कि हम वॉशरूम जा रहे हैं और हमारे पास शेरबीन में आपका फिर एक बात करना था। जेडीयू के सदर जेम शाहीन ने वजीर बराए रोड सेंड ट्रांसपोर्ट और हाईवे नितिन गडकरी से दरखास्त की है कि वो मुतल्लिका हुकाम को तापर बाबरिशी रोड प्रोजेक्ट की फौरी तकमील के लिए हिदायत दे, जो सोनमर्ग और गुलमर्ग के दरमियान बराह रास्त राब्ता कायम करेगा। जेम शाहीन ने कहा कि ये अहम सड़क न सिर्फ कश्मीर के लिए अहम और स्ट्रेटजिक सियाहती रोड के तौर पर काम करेगी, बल्कि इलाके के राब्ते में एक इंकलाबी तब्दीली लाएगा। सिविल सोसाइटी फोरम के चेयरमैन और पेंशनर्स यूनाइटेड फ्रंट के सदर अब्दुल यूमानी ने सहाफी और शेरबीन के नुमाइंदे इशफाक सईद के वालिद निस्बती नजीर अहमद खान की वफात पर दुख का इजहार किया है। हजरे के मरहूम मोहम्मद रफीक खान तहसील सदर पेंशनर्स यूनाइटेड फ्रंट पटना के चचा थे। इधर शोबे शेरबीन ने भी नजीर अहमद खान की वफात पर दुख का इजहार करते हुए अपने साथी इशफाक सईद और उनके दीगर अहल खाना से ताज़ियत की है। हजरे के मरहूम का चारों मार्च टंगडाल में अंजाम दिया गया। इधर एम्प्लॉयज जॉइंट एक्शन कमेटी जम्मू कश्मीर ने जम्मू कश्मीर के साबिक चीफ सेक्रेटरी अशोक कुमार की वफात पर दुख का इजहार किया है। एक ताज़ियती पैगाम में सीनियर ट्रेड यूनियन रहनुमा और एजा के सदर फैज अहमद शबनम ने अशोक कुमार को एक मुखलिस और उसूल पसंद अफसर करार दिया, जिन्होंने अपनी जिंदगी के दौरान जम्मू कश्मीर की खिदमत में नुमाया किरदार अदा किया। डायरेक्टर सेरिकल्चर जम्मू कश्मीर एजाज भट्ट ने आज जम्मू में सेरिकल्चर महकमे के अफसरान के साथ एक मीटिंग में शमूलियत की। इस मीटिंग का मकसद मुख्तलिफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हंदवाड़ा में मेडिकल तलबा का स्कीमों के तहत हासिल होने वाली पेशरफ्त। सामीन, राजौरी जिले में कई देहात ऐसे भी हैं जहां पीने के साफ पानी की कमी है और बाज इलाकों में पानी की अदम दस्तयाबी के नतीजे में सार्फिन को सख्त मुश्किलात का सामना रहता है। कई देहात में सार्फिन को नासाफ यानी अनफिल्टर्ड पानी पीना पड़ता है, जबकि बाज दूर दराज और दुश्वार गुजार इलाकों में दूसरी बस्तियों से पानी लाकर अपनी जरूरियात पूरा करना पड़ रही है। इस हवाले से एक रिपोर्ट सुनते हैं आरिफ महमूद कुरैशी से। जिला राजौरी के कराड़, तनाड़, टांडकोट और दीगर करीबी दही इलाकों में पीने के साफ पानी की शदीद किल्लत है। अगरचे वक्तन फक्तन मकामी लोगों की तरफ से खबरात सोशल मीडिया पर इन इलाकों की हालत को उजागर किया जाता है, लेकिन हुकूमती सतह पर इस संगीन बहरान के हल के लिए किसी भी किस्म की पायदार कोशिश नजर नहीं आती। जिस तरह पानी इंसानी जिंदगी की बुनियादी जरूरत है, इसी तरह इसे मुहैया करना हुकूमत का अवलीन फर्ज होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से इन इलाकों के लोगों को आज भी साफ पानी जैसी सहूलत के लिए कई मील दूर जाना पड़ता है, जो इनके रोजमर्रा की जिंदगी को हद से ज्यादा दुश्वार बना देता है। अगरचे हुकूमत की जानिब से हर घर जल के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए जल जीवन मिशन जैसे बड़े और बुलंद दावों पर मबनी मंसूबे शुरू किए गए हैं, लेकिन जमीनी सतह पर इन मंसूबों का असर राजौरी जिला के दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में न होने के बराबर है। राजौरी के कराड़ और तनाड़ के टांडकोट के इलाकों में कई जगहों पर नल और पाइप लाइनें बिछा दी गई हैं, मगर इनमें या तो पानी आता ही नहीं या फिर इसका मयार इतना नाकिस है कि इंसानी इस्तेमाल के काबिल नहीं है। कई घरों में नल मौजूद हैं, लेकिन हफ्तों तक इनमें पानी नहीं आता और लोग मजबूरन चश्मों, नालों या दिगर गैर महफूज जराए से पानी हासिल करते हैं, जिससे इनकी सेहत मुतासर होने का खदशा भी बना रहता है। इस सूरत हाल की संगीनी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि गर्मियों के मौसम में जब कुदरती जराए खुश्क होने लगते हैं तो पानी की किल्लत एक बहरानी कैफियत अख्तियार कर लेती है। ख्वातीन और बच्चे रोजाना कई घंटे सिर्फ पानी जमा करने में सर्फ करते हैं, जो कि न सिर्फ इनकी जिस्मानी मशक्कत में इजाफा करता है बल्कि तालीमी, घरेलू जिंदगी और सेहत पर भी गहरे असर पड़ता है। बाज़ जगहों पर तो पानी लाने के लिए दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों और जंगलों का सफर करना पड़ता है, जो न सिर्फ थका देने वाला होता है बल्कि जानलेवा भी हो सकता है।
रास्ते सिर्फ मुशक्कत का नहीं बल्कि बीमारियों का भी है। दूर दराज के इलाकों में पानी की अदम दस्तयाबी की वजह से जो पानी इस्तेमाल किया जाता है वो ज्यादातर गैर फिल्टर शुदा होता है। इन इलाकों में अभी तक न कोई मुकम्मल फिल्ट्रेशन प्लान नस्ब हुआ है, न ही कोई जामिया वाटर सप्लाई स्कीम मुकम्मल हुई है। वादे तो बेशुमार हुए लेकिन अमली इक़दाम बहुत कम। यही सबब है कि राजौरी के दूर दराज के इलाके आज भी पीने के साफ पानी के लिए परेशान हैं। मकामी लोगों ने इल्जाम लगाया है कि हमारे गांव में जल जीवन मिशन के तहत जो पाइप लाइनें बिछाई तो हैं लेकिन ना पानी फराहम किया जा रहा है और ना ही इस निजाम की निगरानी की जा रही है। ये थे राजौरी से आरिफ महमूद कुरैशी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं सालगिरह के सिलसिले में शहीद मायूं मुजम्मिल मेमोरियल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बॉयज करमताब में मुतहदा पैदल यात्रा का एहतमाम किया गया। तकरीब राज्यसभा के रुकन इंजीनियर गुलाम अली खटाना ने शहरी और पुलिस इंतजामिया के अफसरान की मौजूदगी में फ्लैग ऑफ किए। मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा कॉलेज असातिज़ा और आम लोगों ने इस रैली में शिरकत की। CEO अहवल मोहम्मद रहमान की तरफ से एक मुहिम के तहत जिला कुलगाम के मुख्तलिफ मकामात पर डिजिटल साइन बोर्ड लगाए गए, जिसका मकसद सयाहत के शुबे को फरोग देना है और सयाहों और आम लोगों को हकीकी इत्तलात फराहम करना है। ये साइन बोर्ड खासतौर पर अहवल, चौलगाम, कुलगाम, लौर और खुरवनी में नस्ब किए गए हैं। शेरबीन आप श्रीनगर से सुन रहे हैं। त्राल से शबीर भट्ट ने खबर दी है कि इलाका लाड़मू में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल तक जाने वाली सड़क की हालत इंतहाई खस्ता है और इसको लेकर आज मकामी लोगों ने अपना एहतजाज दर्ज किया। मकामी लोगों का कहना है कि सड़क इस कदर खस्ता है कि यहाँ से बच्चों का गुजरना महाल हो जाता है और बड़े बुजुर्गों को भी इस सड़क पर सफर करने से काफी परेशानी हो जाती है। के इलाके में बिजली की गैर आलना कटौती और आंख मचोड़ी का सिलसिला सरमा की दस्तक से पहले ही शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से लोग आगे जा चुके हैं। ताम रफी का मजाक ने मजीद बताया कि उन्होंने मामला चीफ इंजीनियर बिजली की नोटिस में लाया है और उम्मीद है कि आने वाले अय्याम में बिजली सप्लाई में मकबूलियत लाई जाएगी। आपने त्राल से शबीर सुनी और अब प्रोग्राम के आखिर पर एक अहम इत्तला। जिन उम्मीदवारों ने आकाशवाणी श्रीनगर में गोजरी, पहाड़ी, पंजाबी और शीना जबानों के प्रोग्रामों के लिए कैजुअल कॉम्प्यूटर्स चैनल तरतीब देने के मकसद से दरखास्त जमा कराई है, लाड़मू त्राल के लोगों का सड़क को लेकर एहतजाज। इसके साथ ही शेरबीन के आज के मौज़ूआत मुकम्मल चाहते हैं। अपने मेजबान और शेरबीन के एडिटर मोहम्मद हुसैन जफर शेरबीन की पहाड़ी, पंजाबी और शीना जबानों का इम्तिहान होगा। कश्मीरी और उर्दू के लिए इम्तिहानों की तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। उम्मीदवारों से कहा गया है कि वो मुकर्रर वक्त से 1 घंटा पहले मरकज पर पहुंच जाएं। याद रहे कि इम्तिहान 12 नवंबर बुधवार को दिन के 2 बजे लिया जाएगा। शेरबीन आप श्रीनगर से सुन रहे हैं। सामिन जिला डोडा के दर्जनों देहात से सार्फिन की शिकायत है कि वहां पीने का पानी फराहम करने का कोई मुस्तकिल इंतजाम नहीं है और इन देहात में सार्फिन को अपनी जरूरियात पूरा करने के लिए कभी ना साफ पानी इस्तेमाल करना पड़ता है, जबकि बाज़ औक़ात नजदीकी देहात से पीने के लिए पानी लाना पड़ता है। मुकम्मल रिपोर्ट के साथ नसीर खोड़ा। जिला डोडा की तहसील बेला के चिगसू व इसके मुल्का देहात में पीने की पानी की शदीद किल्लत पाई जा रही है, जिसके सबब पीने की पानी की किल्लत को लेकर जिला इंतजामिया व मुतलका महकमा जल शक्ति डोडा डिवीजन के दफातर में मुकामी आबादी के वफूद का आना जाने का सिलसिला बना हुआ है। अलागा चिगसू जो कि एक दूर दराज और पहाड़ी इलाका है और वहाँ से अवामी वफूद का सदर मुकाम डोडा वारिद होना बेहद मुश्किल है, इसलिए कि इन लोगों को अपनी मुश्किलात की खातिर कड़कती धूप और शदीद बारिशों व बर्फबारी में पैदल सफर करना इनकी मुश्किलात में और भी इजाफा होता है और यहाँ की आवाम प्यास की मार झेलने पर मजबूर हैं। यहाँ के अवामी हलकों ने शहरबीन को बताया कि बलाक, चिराला, चगसू 7 वार्डों पर मुश्तमिल है और इन तमाम वार्डों पर मुश्तमिल आबादी काफी अरसा से पानी की किल्लत से दो चार हैं, जिसकी वजह से आबादी में महकमा PHE के हुकाम व ड्यूटी पर मामूर मुलाजमीन पर नहायत ही गम गुस्सा पाया जा रहा है। इन लोगों ने मजीद बताया कि आम लोगों के साथ साथ
हाई स्कूल के तलबा, आंगनवाड़ी सेंटर, राशन स्टोर्स और एकेडमी के स्कूली बच्चे प्यास की मार झेलने पर मजबूर हैं। इनका मजीद कहना है कि एक हफ्ते में सिर्फ एक बार नल में जल आता है और ये मसला नया नहीं बल्कि 1 साल से ज्यादा अरसा से पानी की सुबह की तरसील नहीं हो रही है। किसी वार्ड में हफ्ता में एक बार पानी फराम होता है और इसी तरह दीगर वार्डों के लोगों को दीगर अवकात में फराम होता है और दूसरे वार्डों में लोगों को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। लोगों का इल्जाम है कि अगर पीने की पानी की तकसीमकारी में यकसानियत होती और पानी सप्लाई होने वाली पाइपों में लीकेज बंद होती तो सूरत हाल कुछ कदरे बेहतर होती। इन लोगों ने मजीद बताया कि महकमा जल शक्ति डिवीजन डोडा व सब डिवीजन चिराला के हुकाम ने इस इलाके को अक्सर तौर नजरअंदाज कर दिया है, जबकि जेई और डेली वेजर्स लाइनमैन को चंद हफ्ता कबल इलाका में देखा गया था मगर तब से ये गायब हैं। इलाका चगसू के मुकामी अफराद का मानना है कि अगर यहाँ मुकामी महकमा जल के मुलाजमीन इन स्कीमों की सप्लाई लाइनों की देख रेख करते तो पानी आसान तरीके पर हर एक को फराम होता, मगर यहाँ के मुलाजमीन जाती कारोबार में मसरूफ होने की वजह से अपनी ड्यूटी लोगों की तसल्ली के मुताबिक अंजाम नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से महकमा जल की कारकर्दगी पर गैर इत्मीनान बख्श तस्वर की जाती है। इन लोगों ने शहरबीन को बताया कि महकमा जल शक्ति ने मुतअद्दिद स्कीमें इन इलाकों में लोगों को पीने के साफ और शफाफ पानी को घर घर तक पहुंचाना था और इन आब रसानी की इन स्कीमों का मकसद भी यहाँ के मकीनों को पानी वाफिर मिकदार में फराहम करना था। इन स्कीमों के बिछाई गई पाइपें और इनको तजदीद मरम्मत करना और नुकसान होने की सूरत में इनको बहाल करना महकमा के मुलाजमीन की अहम जिम्मेदारी थी, जिस पर सरकार ने ज़र कसीर भी खर्च किया था। मगर यहाँ पर सिर्फ पाइपें बिछाई गई तो पानी कहीं नहीं है। इनमें बाज स्कीमें टूट फूट का शिकार भी हुई हैं। इलाका चगसू व इसके मुल्हिका देहात के लोगों ने जिला इंतजामिया व महकमा जल शक्ति के आला हुकाम से इस अहम मसला की तरफ तवज्जो मबजूल करने का मुतालबा करते हुए चगसू की कसीर आबादी को पीने की पानी की सप्लाई बहाल रखने और किल्लत को दूर करने का मुतालबा किया है। ये थे डोडा से नसीर अहमद खोड़ा। इसके साथ ही शेरबीन के आज के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ। चाहते हैं अपने मेजबान और शेरबीन के एडिटर मोहम्मद हुसैन जफर शेरबीन की निगरान समीना शाह को इजाजत दीजिए।